guys, in this short session, I will be discussing some very useful techniques for reading comprehension. And even as a student who is a beginner, you can actually try these techniques to solve reading comprehension and get great accuracy. Okay, so start karte hain guys. So when I look at reading comprehension is not an activity for which you have unlimited time. And also, you don't have to be a language expert or literature expert to solve reading comprehension. Okay, so what you have to understand is that solving in RC is a skill. ठीक है, so जैसे कोई भी स्किल होती है उसी तरीके से RC को सॉल्व करना भी एक स्किल है. एंड when you start solving in RC, you always keep in mind that you have to do this RC within a time limit. क्योंकि आपका जो भी पेपर है उस पेपर के अंदर एक टाइम लिमिट है. ठीक है, उस एग्जाम के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि कितना टाइम मैं इसमें देना अफोर्ड कर सकता हूँ ना. सो लाइक मे बी 7 minutes एंड देन अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू सॉल्व द पैसेज विद इन दैट टाइम फ्रेम. नाउ obviously your comfort level with the topic of the passage matters. और जब आप पैसेज को रीड करते हो तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि आप उन पैसेजेस को पहले पिक करो जो आपके कंफर्ट लेवल के साथ मैच करते हैं. राइट, नाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ पैसेज, ठीक है, तो मेरे पास पैसेज है और उसके पैसेज के साथ में कुछ क्वेश्चंस है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू रियली रीड द पैसेज इन द बिगनिंग, है ना. आपको एक बार उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है. Now, what do we mean by the structure? Okay, just observe कितने paragraphs हैं. Just look at the first and the last paragraph. Just try to get a glimpse of what the passage is basically talking about. Author यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, author का point of view क्या है. Author यहाँ पे आपको कोई चीज explain कर रहा है, किसी मुद्दे को लेके argue कर रहा है. Is he neutral? Is he opinionated? If he has an opinion on something, what do you think is the opinion? Is he positive? Is he negative? Okay, so just like when you watch a movie trailer gives you a very good idea of what the movie is going to be all about. Similarly, you scan the passage. Now, scanning the passage has basically two advantages. One, when you actually read the passage, you know which parts of the passage to target and you can like easily handle the questions. And it also gives you like sort of an overview of what you are dealing with. And the second biggest advantage is that if you think that the passage is too tough for you, then maybe you may decide to do it partially and invest the same time, invest the remaining time in some other question type, है ना. So you have to scan the passage first. Now, once you are done with scanning, once you have looked at the paragraphs, now start looking at things like the author's tone, the main idea of the passage. Okay, किस पैराग्राफ में जाके आपका ऑथर का आर्गुमेंट शिफ्ट हुआ है. इसमें ना मैं एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. So any passage that you see has multiple paragraphs, right? So हो सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ के आपको मेन आइडिया नहीं पता चले, but eventually as you go on reading the paragraphs, always remember to take a 10-second break after each paragraph. Now this 10-second break would allow you to reconcile whatever you have read in the first paragraph. Similarly, second paragraph के बाद भी 10-second का break लो and then move on to the third paragraph and this goes on. Now, what will happen because of this 10-second break after every paragraph? In that 10 seconds, you would be able to basically summarize whatever you have read. So, जब लास्ट तक आप पहुंचोगे तो लास्ट तक आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाएगी कि एग्जैक्टली ऑथर ने यहाँ पे हमें क्या बताने की कोशिश की. तो जब वो स्टोरी बनेगी तो उसमें आपको मेन आइडिया भी समझ में आएगा, ऑथर का इसमें इंटेंशन भी समझ में आएगा. एंड यू वुड ऑल्सो नो कि थर्ड पैराग्राफ तक तो ऑथर पॉजिटिव था, लेकिन थर्ड पैराग्राफ के बाद में उसने अपना आर्गुमेंट शिफ्ट किया एंड देन ही स्टार्ट्स लुकिंग एट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, है ना. सो आर्गुमेंट की शिफ्ट भी आपको ऑब्जर्व होंगे, राइट. एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट because like when you solve the questions, these are the sort of things that you would require. Okay, the first and the last paragraphs are especially important because like the first paragraph gives you the intro and the last paragraph gives you the final verdict, the conclusion. Okay, so these two paragraphs are to be observed with like with full concentration, and you should know that these paragraphs are going to have hold more importance as compared to the other ones. ठीक है, क्वेश्चंस की बात करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस को आप रीड कर रहे हो तो क्वेश्चन को रीड करते टाइम क्या मेरे को सीधे ऑप्शंस पढ़ लेने हैं? नो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. ओके, एंड वंस यू आर डन विद द क्वेश्चन, डोंट जस्ट रीड द ऑप्शंस. ओके, जस्ट वेट. mentally
मेंटली आप उस क्वेश्चन के हिसाब से विजुअलाइज करो कि एग्जैक्टली आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट द आंसर फर्स्ट. Once you've predicted the answer mentally, then go and check the options, which option matches with your like mental version of what you thought should be the answer. Right? एकदम से ऑप्शंस को मत पढ़ो, है ना. ठीक है. स्टेम को पढ़ा, आंसर को प्रिडिक्ट किया, फिर नीचे देखा कि कौन सा ऑप्शन है जो मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से, जो मैंने अभी सोचा उसके हिसाब से मैच करता है. ठीक है. लगे ना, विच ऑप्शन मैचेस विद माई idea of what the right answer should be, right? Okay. Now comes the elimination stage. ठीक है. जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चंस को मतलब जो ऑप्शंस है उसमें मैं एलिमिनेशन करूंगा. 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से कैसे एलिमिनेट करोगे? देखो 4 ऑप्शंस में से ना 2 ऑप्शंस वुड बी इजिली एलिमिनेटेड. नाउ हाउ वुड आई इजिली एलिमिनेट? मे बी ऑप्शन आउट ऑफ स्कोप है, मे बी देयर इज अ ट्विस्ट इन ऑथर्स व्यू. ओके, मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, उस पैसेज के अंदर जो चीज बात हुई है और जो ऑप्शन में जो लिखा है उसको बिल्कुल आपने ट्विस्ट कर दिया, है ना. लाइक यू कैन यूज वोकैबुलरी फॉर दैट, यू कैन यूज फ्रेजिंग फॉर दैट. ओके, एक्सट्रीम वर्ड्स आ रहे हैं, ऑलवेज, नेवर, ओनली. ओके, ऑलवेज जैसे है तो ऑलवेज वाला ऑप्शन 99% गलत ही होगा, क्योंकि ऑलवेज का मतलब ये हुआ कि हमेशा. या नेवर आ गया, अब नेवर एक एक्सट्रीम वर्ड है, ओके, है ना. ओनली आ गया, एक्सट्रीम वर्ड है. तो एक्सट्रीम वर्ड वाले ऑप्शन ना जनरली एलिमिनेट हो जाते हैं. Okay, so once you have killed those 2 first options, then compare the final 2. ठीक है. तो 2 ऑप्शंस आपके इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ऑप्शंस में थोड़ा फाइट रहेगा. उन दोनों ऑप्शंस के अंदर से आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डिफरेंस है. कोई वोकैब का डिफरेंस है, या शायद एक ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली पैसेज का जो व्यू पॉइंट है उसको कन्वे नहीं कर पा रहा. ओके, थोड़ा सा डेविएशन है ना. दैट वुड रिक्वायर अ बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, बट यस, 2 ऑप्शंस वुड बी एलिमिनेटेड इजीली, राइट. Okay. Now comes the reflection stage. ठीक है. कभी भी जब आपका आरसी खत्म होता है तो आरसी के करने के बाद, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन की स्टेज होती है. बिकॉज जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, पैसेज पढ़ा, ठीक है, पैसेज को पढ़ने का क्वेश्चंस किए, 7 मिनट्स में पैसेज हो गया, क्वेश्चंस हो गए, पेपर वगैरह आपने एंड किया और उसके बाद सबमिट करके स्कोर देख लिया, खत्म. Now this is a wrong method. Why? Because you have not been able to get any learning from what you just did. ठीक है. अब लर्निंग कैसे मिलेगी? लर्निंग देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनालाइज करना पड़ेगा पैसेज को, है ना. पैसेज को एनालाइज कैसे करोगे? क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, लेकिन रॉन्ग क्यों हुए? ठीक है. क्या रीजन था कि मैंने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया? ओके, व्हाई डिड आई गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग? क्या वहां पे कोई ऑप्शन ट्रैप था, कोई वोकैब का वर्ड था, कोई ऐसा फ्रेज या कोई इडियम था जो मुझे समझ में नहीं आया, या फिर शायद रीडिंग का इशू था. ठीक है, मैं पढ़ के ही नहीं समझ पाया. ठीक है. देयर गोना बी अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, बिकॉज सी, जो आपका कैरी ओवर इफेक्ट है पैसेज का, वो कब आएगा? जब आप लर्निंग्स को कंपाइल करोगे. ठीक है ना. तो यू कैन ऑलवेज कीप दैट लॉग वेयर यू एंटर कि ओके, आई डिड लेट्स से 3 passages today and these were the errors that I made, right? Okay, so remember that reading is just not limited to doing an RC and then checking the score. It also includes reading, analysis, emotional control. Emotional control क्या है? Emotional control का मतलब, जब मैं पैसेज को पढ़ रहा हूं तो मुझे चीज ध्यान में रखनी है कि भाई मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा. ठीक है, आई हैव टू डू दिस पैसेज विद इन अ टाइम लिमिट. जो भी आप टाइम लिमिट रखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल, आई वुड सजेस्ट अराउंड 7 मिनट्स. बट हो सकता है कि आप में से कई लोग इससे कम टाइम में कर लें, थोड़ा बहुत ज्यादा भी ले सकते हो. बट द पॉइंट इज दैट ट्राई टू complete the passage within that time frame, because you have to do other things also. Okay, like it's not like only one passage has to be done. Emotionally थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो कि आपने वॉच को नहीं देखा and you ended up investing a lot of time. Okay, and then does not really make sense, है ना. ठीक है, सही भी हो जाए तो फिर क्या फायदा? ठीक है ना, तो भी क्या फायदा? इन्वेस्टमेंट तो बहुत चला गया आपका टाइम का, राइट? ओके. Final truth, RC isn't about speed, RC is about control, RC is about accuracy, RC is about being aware that you have limited time, being present, being patient. Okay, पैनिक नहीं करना है. ठीक है, रीडिंग कर रहे हो तो कामली रीड करो. ठीक है, आप जब पैसेज को अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसके बाद एनालाइज करो कि एग्जैक्टली कहाँ गलतियां हुई, है ना. These small things make a lot of difference. Okay, and I think most of you who have tried doing an RC, यही सारी problems हैं जो generally हम लोग face करते हैं. Okay, so guys, to
apply these techniques and do share, okay, how your practice goes with these techniques. Okay, so that's it, guys, for today's session. I want to see you in the next session. Bye bye, take care.